मिल रही है कि 23 300 350 आर द लेवल्स जहाँ पे निफ्टी को ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी पहुंचने को. बट इफ वी सी अराउंड 23 400 500 देखेंगे तो आईवी वहाँ पे इंक्रीज हो रही है. दैट मीन्स समवेयर थोड़ा ज़्यादा झुकाव अभी भी हम देख पाएंगे कि वो रेजिस्टेंस जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है. के दिन देखना है कि एक्चुअली एनबीएफसीज आर हेडिंग टुवर्ड्स व्हिच साइड, राइट. आर दे गोइंग टू बी द स्टॉक्स आर गोइंग टू बी द ड्रैगर्स और जी. गोइंग टू ओके. गोइंग टू टेक द निफ्टी ऊपर. ओके. सो सो एनबीएफसी में मेरा खास ध्यान रहेगा आज के दिन. राइट. ऑटो, सीमेंट एंड फार्मा. ओके. ओके. तो ऑटो एंड सीमेंट ऑब्वियसली दे वर देयर बिफोर हैंड, यहाँ पे ही थे वो सेक्टर्स. बट फार्मा में भी हमने कुछ यही चीज सिमिलैरिटीज देख पा रहे हैं. बट आई बिलीव मेनली अगर हमें फोकस करना है, आई थिंक मीडिया एंड टेलीकॉम आर द न्यू वंस जो आ चुके हैं. प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स आर स्टिल अनसर्टेन, तो इन पे हम जजमेंट नहीं बनाएंगे. निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ अ रिवर्सल, सो आई थिंक उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं. जी. कैपिटल गुड्स, मीडिया एंड टेलीकॉम आर द थ्री सेक्टर्स जिसपे आप नजर बना के रख सकते हो, जिसमें आप थोड़ा सा एक So yesterday we had Sensex expiry और जी. 500 रुपए का प्रीमियम ही था. I mean when we talk about saddle भाव. So जी. when the premiums are low, we have seen market does not give much move here and there. Okay, so it went well. But then today is a different day, and we have a lot Yes. of different data to actually work around. So Excuse me. for example, so IT sector, for the first time in last 90 days, it's looking uh, relatively weaker than the entire market. Okay. Okay. And even if you see, so let's talk about data. You can project onto your screen as well. Yes. Right. HCL Tech, HCL Tech. Okay. Okay. It had added about 9,000 lot on the future, and this is the highest number of lot or OI built in a day in the last many months in this counter. Okay. Right. Uh, and talking about the call side, so about 23 24,000 lots of call traded, wherein the put is not even 1,000 lots. So 1 is to 24 is the ratio of the call to put trade. Okay. So that is one, and then the second most important data, Reliance. जी. Things were looking good, but what happened yesterday? If you see the entire option chain, OI, not the trade, not the volume, the OI change on the put side is just 51, call side is about 6,000. So you can go back and check the percentile of our, into our system and get an idea about that. But yeah, Okay. suddenly Yes, sir. Reliance started to looking bad here, and SCL Tech, the sector which were really quite supportive of the whole bullish market, is looking good, not good here. So Right. so things are not great to start the day, but yeah, I mean we are a bit of oversold, Yes, so sir. तो थोड़ा सा cautious है. Right. But yeah, I'll be looking for a bearish trade. 23 जी, जी. 240 Okay. 245 and that's a spot level. हाँ. Okay. इसके ऊपर I think अगर खुलते हैं, I mean if you have to be settled, okay. अगर इसके ऊपर खुलते हैं तो थोड़ा होल्ड करेंगे, अदरवाइज we'll go ahead and 23 500 के स्टॉप लॉस से एक शॉर्ट ट्रेड क्रिएट करेंगे. ओके, सो एक 23,500 के स्टॉप लॉस के साथ एक आपने कहा शॉर्ट ट्रेड क्रिएट करेंगे. कोई और बैंक निफ्टी पे. जी 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 सर. target will be way below the yesterday low. Yeah, ओके. and bank nifty is 49,500 will be the stop loss. So थोड़ा उसको टाइम देते हैं बैंक निफ्टी को. जी. But and by the way, just to now since we're talking about some numbers and data, Yes. Right. Kotak Bank was the third highest OI in the future yesterday. So बैंक निफ्टी में काफी सारे पोजीशन बने हैं, possibly जी. anytime the भाव can reflect. But yes, Kotak Bank had a huge OI built up yesterday. If I have to go long, I'll go long in biotech kind of pharma and Okay. IT. I'll pick to short. ओके, सो Right. आईटी एंड फार्मा ऐसे दो सेक्टर्स है. Yeah, so that played out. Right. Yeah, that played out. Yeah. So we seen yesterday also, while the IT sector was going on the lower end, काफी अच्छा move हमने private banks में देखा था. Right. I'm so happy you remember that yesterday also. Yeah, so that played out. But Right. you know what? I think the current pullback,
we were oversold. I mean, there Right. are leading indicator. For example, if you are tracking money flow index, those were Right. oversold on the 4 hour time frame and all. Okay, those are Right. long time frames. तो Yes, थोड़ा सा sir. उसको स्टेबलाइज होने के बाद फिर चालू होगा ये जी नीचे का सर। खेला. राइट सर, बिकॉज इवन इन HCL टेक काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया था इवन दो, एंड आफ्टर दैट स्टिल काफ़ी ज़्यादा हमने उसमें एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखी थी। राइट, सो आई थिंक अगेन एज यू सेड एक ओवरसोल्ड मार्केट हम ऑब्जर्व करे थे इन IT सेक्टर एज एन ओवरऑल। राइट, एंड एक लॉन्ग कॉल के साथ जाएंगे इन BSE। ओके, सो आई थिंक एक 6000 की स्ट्राइक के साथ जा सकते हैं। थोड़ा OTM है बट काफ़ी अच्छा एक IV का इम्पैक्ट हम देख पाएंगे इंक्रीज होते हुए बाय द टाइम। Okay. सो एक यहाँ पे करंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 98 आई बिलीव। राइट, सो चलो 100 ही पकड़ के चलते हैं। 100 पे एक एंट्री बन रही है यहाँ पे, जी। एंड यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहूँगा ऑलमोस्ट अराउंड 80 का, एंड विल पुट अ टारगेट ऑफ अराउंड 140, एंड एक ये इंट्राडे बुलिश स्ट्रैटेजी मेरी तरफ से जो मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेव। I've gone to Nifty 23,250 put. Okay. Okay. So Nifty And put option you want to go with 23,250, which is at the money level currently, right? at the money level, हाँ वो at the Right. money level है. So यहाँ पे naked put के साथ जाना चाहेंगे सर, and what can be the sir target and stop losses? So my target is on Nifty, okay, and it is Right. yesterday low. Okay, Um, so सर ने स्पॉट पे मतलब चार्ट पे यहाँ पे टारगेट दिया है। ओके, बट So as I अगेन said, I'll manage this if it's not going to my direction, I'll make it a spread and all something, okay. ओके But for now तो मैं naked इसको रख रहा हूँ कुछ देर के लिए. ओके ओके Um, ओके Till Maruti does not realize it is Maruti. ओके, सो सर ने यहाँ पे कल का लो दिया है एज द टारगेट। सो एक बार यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 70-80 पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहा है कल का लोएस्ट पॉइंट। ओके सॉरी, ओके, सो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स है। राइट, सो 80 पॉइंट्स जनरली आई थिंक ऑप्शंस में वी आर गोइंग विथ एट द मनी तो 40 पॉइंट्स हो सकता है। तो वी आर एंटरिंग एट 81। व्हाट विल डू इज कि विल कीप द टारगेट एज 120। ओके, सो एक लॉन्ग पुट के साथ सर इज गोइंग। ओके, सो ये एक पुट ऑप्शन का जो इंट्राडे बेरिश स्ट्रेटजी है जो सर देना चाहेंगे उसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेव। ओके, आई हैव पुट अ मिनिमल स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स एंड उसके सामने 40 पॉइंट्स का टारगेट रखा है जो इंट्राडे है, जिसको मैं कर देता हूँ सेव। Yeah, yeah. एक चीज और है, I think the trade which we got in is in Right. profit now. What we'll Right. do, Right. आप अगर नेकेड वाले का स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे ही, एक दूर का अभी पुट भेजेंगे. ओके ओके, सो यहाँ पे इसी ट्रेड पे हम इसको Moved very fast, like Right. 71 to 92, moving very Right. fast. राइट, सो इसी ट्रेड में सर शुड वी गो एंड सेल अ पुट, फार अवे पुट? Yeah, we'll sell a put, so Okay. 22,900 का पुट भेज देंगे, ठीक है. ओके, सो 22,900 का पुट भेज देंगे एंड एच कर देंगे पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को। ओके, सो अराउंड तो 13 पे 13-14 रुपए आ रहे जी, हैं, ज्यादा नहीं. Right. 950 बेचते हैं, 16 रुपए आएंगे कम से कम. है राइट। सो ओके ओके, सो दिस इज लुकिंग गुड सर। Yeah, now we are good, at least good, because Okay. बेरिश ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स क्योंकि मैंने OI डेटा एक्चुअली ओपन करके रखा है ओके एंड अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक कॉल राइटर्स के Right. जो पोजीशंस है उस पे बहुत ही नेग्लिजिबल वी कैन सी पुट राइटर्स की पोजीशंस राइट बने ही नहीं है। अगर मैंने एक्चुअली ये आज सुबह से अब तक का डेटा लगाया लाइक नाउ फ्रॉम Right. द ओपनिंग टिल नाउ जी कॉल राइटर्स हैव बीन एडिंग देयर पोजीशंस एंड ऑन ऑल द लेवल्स एक्चुअली जी भारी मात्रा में एडिशन कर रहे हैं। Right. तो मुझे लगता है कि एक और थोड़ी गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। यस सो यहाँ पे स्ट्राइक की बात करें तो अराउंड 580 पे ही एक डिसेंट लिक्विडिटी मेरे को दिख रही है। ओके सो यू वांट टू गो विद 580? ले लेते हैं। ओके, सो 27 का ट्रेडिंग प्राइस है। ओके लोएस्ट पॉइंट की बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है लोएस्ट पॉइंट जो है आई थिंक अराउंड 1920 का दिख रहा है। 19 का एक दिख रहा है मेरे को, 18.5 19 का दिख रहा है। ओके तो 19 का ही एक स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम एक और ट्रेड साक्षी जी की तरफ से जिसको जी। मैं कर देता हूँ सेव। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम SL लगा देंगे
19 का. जी. And what can be the target? टारगेट अराउंड 34 का टारगेट रखेंगे. ओके, सो 34 34 का टारगेट जी. लेके जाएंगे. साक्षी जी थोड़ा सेफर एंड पे टारगेट Yes. सेट कर रही है. राइट, ओके, सॉरी. 19 एंड 34 एक Yes. स्ट्रेटेजी साक्षी जी की तरफ से अगेन ऑन द बेरिश एंड. एंड इंट्राडे. या 23,250 की अगर हम बात करें तो क्लोज टू 61 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ओपन है ऑन दी कॉल साइड. एंड इफ यू टॉक अबाउट दी नंबर्स ऑन दी पुट साइड, ये हार्डली 29 लाख है, विच मीन्स 1:2:1 का रेशियो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है. फॉर एवरी 2 कॉल राइटर्स यहाँ पे उसके सामने एक 1 पुट राइटर की पोजीशन बन रही है. सो फिलहाल के लिए अगर अग्रेशन की बात करें तो येस, कॉल राइटर्स का अग्रेशन बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट अभी भी विजिबल है. इवन इफ यू लुक एट दी हायर स्ट्राइक्स तो सॉरी, सो हायर स्ट्राइक्स पे भी येस, जो कॉल राइटर्स का वेटेज है वो अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड 1 स्ट्राइक लोअर दैट इज एट 23,200, यहाँ पे पुट राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है. सो प्रोबेबली हम बोल सकते हैं कि टाइट रेंज में जो है निफ्टी ट्रेड कर सकता है. राइट. ओके, तो बैंक निफ्टी की अगर आप बात करें तो करंटली वी हैव सीन दैट बैंक निफ्टी में एक रैली मिली थी कल, जी. एंड आज भी थोड़ा सा ऑन द पॉजिटिव एंड ट्रेड कर रहा है वो. राइट. ओके, एंड 48,800 इज दैट लेवल जहां पे उसने काफी बार बाउंस बैक दिया है. राइट. पिछले 2-3 दिनों से ही बात करना चाहूंगा मैं. जी. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कर्सर जहाँ पे रखा हुआ दैट इज आज का चार्ट पे या आज के इंटरडे मोमेंटम पे आप देख सकते हैं कि 48,800 के लेवल से उसने एक बाउंस बैक दिया. एंड कल भी अगर आप देखने जाएंगे तो यस, दिस वाज दैट लेवल जहां से उसने वापस एक बेहतरीन बाउंस बैक दिया था. राइट. तो आई कैन से दैट करंटली एक सपोर्ट या एक बोल सकते हैं बिल्ट अप दिख रहा है पुट राइटर्स के एंड से एट 48,800 लेवल्स लेवल्स. पे. दैट इज व्हाट आई कैन से. जी, एक सिंपल सी लॉन्ग पुट की स्ट्रैटेजी मैं डिप्लॉय करना चाहूंगी टाटा एलेक्सी पर. Yes, actually 6,100 can be an idea. Basically थोड़ा ITM साइड पे हो गया. जी. I think yes, this can be ideal because liquidity भी यहाँ पे fair enough दिख रही है मुझे. जी. In fact, एक मिनट 6,000 can be fair enough because Right. थोड़ा सा OTM एक strike OTM है and this can give us a good amount of profits. Yes, so ज्योति जी बताइए आपके supports and targets, SL and target क्या रहेंगे इस स्टॉक को लेकर? सो 128.7 के आसपास हमारी एंट्री होगी. 108 का हम स्टॉप लॉस लेंगे. ओके, 108 एंड आपका टारगेट क्या रहेगा? उसके अगेंस्ट में जो टारगेट होगा वो होगा 150 का. 150 का. जी. देखिए क्या Okay. होता है किसी ग्रोथ रिलेटेड कंपनी में क्या होता है कि व्हेनेवर यू आर टेकिंग एनी प्रोजेक्ट्स, अब जैसे सपोज आप एक बेसिक लॉजिक समझिए कि इफ यू हैव अ ऑफिस स्पेस एंड वहां से सपोज इफ द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ सैलरी एंड ऑल दोस थिंग्स इज सपोज 10 लाख रुपीस एंड Right. यू आर सेलिंग सम सर्विस by which you are earning 15 lakh rupees, 16 lakh rupees or somewhere in this range every month on month, kabhi 1-2 lakh plus minus. So every month on month your earning is fixed, 4 to 5 lakh rupees fixed type of earning, nothing Right. more. This usually happens in a lot of businesses, मतलब बहुत ढेर सारे लोग who open a business, coaching, educational institutions and a lot of businesses जहाँ पे एक stagnant आ जाता है. This happens. Same type of thing is happening in IT sector since last 1.5 to 2 years. Margins are not improving. Margin improve ही नहीं हो रही है. Due to which पता है क्या हो रहा है? So जो जितने भी big players हैं, they always नाम बहुत attractive होते हैं, Infosys and all. सब लोग बहुत ही खुशी से आते हैं कि now this time अच्छा, this time it will be different, this time it will be different, and then they look at that margin number, profit of it, सब कुछ ऊपर नीचे रहता है, everything is good, जो भी हो. The margins are not improving and then they are finding an excuse to sell the stock. So basically लॉजिक ये है कि देखिए आईटी सेक्टर में फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यही मैंने जो लॉजिक बताया कि एक ऑफिस में अगर इफ दिस इज द थिंग, इफ दे आर नॉट डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो हर मंथ एक फिक्स इनकम आएगी व्हिच इज नॉट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्रोथ. सो ड्यू टू व्हिच आईटी सेक्टर में अभी जो आने वाला समय है, एंटायर मार्केट विल बी क्लोजली वॉचिंग द मार्जिन्स नंबर्स. Now, Perfect. Infosys का रिजल्ट अगर आया, Infosys if it misses the margins, then it will hurt the expectations from Wipro, TCS as well. HCL Right. Tech ने already disappoint किया. So this is Right. how what you have to watch. वहां पे रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी चीज होगा, नॉइज होगा, उसको आपको फिल्टर करना है एंड यू हैव टू फिक्स योर आई ऑन द मार्जिन नंबर ओनली एज ऑफ नाउ, एटलीस्ट फॉर दिस क्वार्टर. बाकी आगे क्वार्टर में कुछ और होगा. सो फॉर एवरी व्यूअर, लेमैन अप्रोच में मैं बता रहा हूँ कि सारे डेटा को आपको इग्नोर करना है.